Praise the Lord. I thank God for this wonderful opportunity that God has given to be here once again. I am really grateful to God. परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ ये समय जो परमेश्वर ने दिया है खास तरीके से जब हम देख रहे हैं इस ऐसे एक समय पे ना during this time to be very frank I sometimes end up thanking God. I'm no exaggeration. I literally end up thanking God. And I thank God for this season. ऐसे एक समय इसलिए आया है because of that, you know, what is happening is like there are different people coming from different areas, and people have been able to worship God at least in this form. To be very frank, a lot of people have started to understand certain things that were being taught by others. The false teachers were not right. Right, and there has been more time that has been spent in the presence of God, and praise God for this. Praise God for times that you as a church have taken to come into the presence of the Lord. है ना, परमेश्वर के सन्निधान में इस प्रकार आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। हम जो है परमेश्वर के वचन से देख रहे थे the fruit of the spirit, आत्मा के फल के बारे में हम देख रहे थे, और किस प्रकार ये आत्मा के फल जो है हमारे जिंदगी में हम लागू कर पाए, है ना, इसके बारे में हम देख रहे थे। Yesterday I was kind of telling about two things, like two different kind of things that are fighting against each other within our body. ना हमारे शरीर में दो प्रत्येक चीज जो लड़ाई कर रही है, हमने गलातियों उसके 5 अध्याय से हमने देखा था कि how this fight is been very critical fight, है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक लड़ाई हमारे अंदर चल रहा है ना। पवित्र आत्मा जो अच्छा काम करना चाहता है और हमारे अंदर जो शरीर है जो अच्छे काम करने से रोकता है ना, इन दोनों के बीच में ये जो लड़ाई चल रहा है ना, इस लड़ाई में जो है हर समय जब देखते हैं, अधिकतर समय most of the time one thing that we see is that it is not the Holy Spirit that wins, right? Most of the times that we see is it is the flesh, the sinful desires that end up winning, that end up overcoming the Holy Spirit, the desires of the Holy Spirit, and we are called to destroy the works of the flesh, destroy the works of the flesh. सारे वो शरीर की सारे वो काम इच्छाएं जो है सब कुछ तोड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और ये परमेश्वर के द्वारा ही कर पाएंगे. We can do it only through the Holy Spirit, right? Through the work of God, and we were trying to work on that, and today आज हम जाएंगे परमेश्वर के वचन में. मैं कृपया रिक्वेस्ट करता हूं कि if somebody can read Galatians chapter 5, and if you can read verse 22 and 23. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. कोई पढ़े हिंदी में या अंग्रेजी में? You can read that. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास. 23 also, Pastor? Yes. नम्रता और संयम है. ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं. Right. Let's have a word of prayer. Father Lord, we want to thank you for this time, especially Lord for this opportunity that we have got. परमेश्वर आपके वचन से जब हम मनन कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप बात कीजिएगा. किस प्रकार से क्या हमें बात करना है परमेश्वर, आप हमसे बात करें. Lord, speak to me, speak through me, so that your word may be very clear to us, Father. And thank you for doing so, and that's in our prayer, guiding through. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. ये जो हम देख रहे हैं इस समय पे, हम जब ये वचन से हम जब देख रहे हैं, खास तरीके से एक बात ये है कि हम जो है आत्मा के फल के बारे में we are looking into the fruit of the Spirit, right? And this fruit has to start working within us, right? We have to start producing fruit. हम जब फलों के बारे में देखते हैं, है ना, ये एक बार नहीं आया. When we look into the scripture as such, you know, John the Baptist, when we come to the New Testament, नए नियम में जब आते हैं, John the Baptist, when he came through, he told to the people, when we read that in Matthew chapter 4,
Matthew chapter 3, right? He stands there and he proclaims, and वो कहता है कि you brood of vipers, who has told you to, right, be saved from all this wrath that is coming, you repent and produce fruit, आप मन मुटाओ और आप फल निकालो, फल लाओ, you should produce fruit. This is what John the Baptist was saying. That's the same thing that we read that Jesus is asking. Jesus is telling when you come to Matthew chapter 7, he says that fruit, good fruit, we are called to produce good fruit. अच्छे फल को लाने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है. अच्छे फल है, एक पेड़ में अच्छा है, बुरा फल भी है. And you come to John chapter 15, Jesus is saying, I am the true wine. मैं ही सच्चा dark हूँ, ना dark रस, है ना, dark रस नहीं, I'm like dark, है ना, it is grape. I am the true wine, right? And Jesus is saying, you need to be with me. है ना, आप डालियां हैं, you are the branches. Unless you are with me, connected with me, you cannot produce fruit. है ना, अब जब प्रेरित में आते हैं, when we come to the Acts of the Apostles, we come chapter 2, right? Towards the end, when we see there is this mighty power of the Holy Spirit that comes along the people, and there is a big message, a great, wonderful message that Peter is giving. पत्रस जो है बहुत ही शानदार एक सुसमाचार सुनाता है. उसके बाद लोग पूछते हैं, हे प्रभु के दास, हम क्या करें? What can we do? What shall we do, sirs? And he says, repent and produce fruits. है ना, फल लाना, ये जो है नया एक कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ये पहले से ही चल रहा है. और ये जो है बात यहाँ पे पौलुस कहता है, Paul has been repeatedly saying this, right? Now Paul is telling here that we need to produce a fruit of the Spirit, right? What we see here basically about this fruit, है ना, ये fruits नहीं है ना, it is not plural, ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है ना, फल कहा गया, फलों को आप लाओ नहीं कहा गया, फल, है ना, it is fruit and not fruits. But when we go a little back with regard to in verse 19, हिंदी में पढ़ पाओगे क्या? गलातिया उसका 5 का 19 से पढ़ेंगे. It is not singular but it's plural there. Can you read that? शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम. शरीर के काम. In English you can see the plural aspect of that. Now when you follow the desires of the sinful nature, the results, or in NIV it says the acts, है ना, there is plural there, है ना, वो बहुवचन है. लेकिन जब हम फलों के बारे में देखते हैं, वो एक वचन ही है ना. मैं जल्दी ही आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि I want to touch upon something which is very serious. That is the point of love, right? Now when we look into this, मतलब शरीर के कामों के बारे में देखते हैं ना, वो बहुवचन इसलिए है क्योंकि आप चुन सकते हो किसको करना चाहिए, है ना. इसमें मतलब सेक्सुअल इमोरलिटी, है ना, यौन संबंध के विषय में लिखा गया है ना, शरीर की मोह के बारे में लिखा गया है, आपको लड़ाई करने के बारे में लिखा गया है, दारू पीने के बारे में लिखा है ना. यू कैन चूज, है ना, आप चुन सकते हैं. आप कह सकते हैं भाई साहब आज के दिन मैं जो हूँ मैं दारू पीऊंगा, है ना, आज के दिन, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, आप सेलेक्ट कर सकते हैं आज मैं, है ना, मैं उस जगह पे जाऊंगा जहां पे मैं जाके विचार करूंगा. I can select one of those sins. All are sin, but you can choose one of those. I can choose today, मैं जाके आज लड़ाई करूंगा, भाई साहब बहुत दिन हो गए लड़ाई करके, आज जाके लड़ाई करेंगे, है ना. I can choose all those sins. I can choose one by one. But that's not the case with the fruit of the Spirit, है ना. उसके लिए वो बहुवचन में नहीं दिया गया, है ना. ये सब मिलके एक पैकेज है ना. लव, जॉय, पीस, खुशी, शांति, समाधान, ये सब मिलके एक पैकेज है ना. इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, है ना. कारण इसलिए है क्योंकि हम इसको चुन नहीं सकते. We cannot choose what to be done today. हम नहीं कह सकते भाई आज मैं प्रेम करूंगा, today I will love, कल मैं खुशी करूंगा और कल मैं प्रेम नहीं करूंगा, है ना. मैं कल प्रेम नहीं दिखाऊंगा, परसों जो है मैं शांति दिखाऊंगा, मैं खुशी नहीं दिखाऊंगा. ये we cannot do. It's a package where if we have the fruit of the Spirit, we will have all of these characters. We should be portraying. Amen. है ना. हम जो है अगर परमेश्वर की आत्मा में है तो हमें ये सारे गुण हमारे अंदर खुद ब खुद आएंगे. हम इसको चूज नहीं कर सकते हैं, इसको ना चुन नहीं सकते हैं. ये सब कुछ हमारे अंदर रहना है ना. और मैं जल्दी ही एक्चुअली one session is not enough, है ना.
इसमें कोई ऑर्डर नहीं है ना, देयर इज नो ऑर्डर विद रिगार्ड टू, है ना, आपको इसी सीक्वेंस में जाना है, लव जॉय पीस लॉन्ग सफरिंग काइंडनेस, इसी सीक्वेंस में जाना करके कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, ऐसे लिखा गया है बस इतना ही है। बट यू नो अबव ऑल ऑफ दिस एज वी सी लव स्टैंड्स अबव, सबके परे कौन सा है, वो है प्रेम, है ना। हम पहला कोरिन्थी में वो देख सकते हैं, पहला कोरिन्थी उसका 13वां अध्याय, हम आएंगे उसमें, है ना, अगर समय मिलेगा तो हम उसमें आएंगे। लेकिन प्रेम के बारे में, है ना, when we see the word that is used here is agape, है ना। agape is the Greek term that has been used here in Galatians chapter 5 verse 22। agape का अर्थ जो है वो जो है ऐसा प्रेम है जिसमें हम दूसरों के लिए या किसी के लिए जान तक दे पाए, है ना। God so loved the world, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम, अगप्पे, है ना, कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, right? It is that kind of the love of God towards humans, right? It is a godly love, है ना। इसको हम जो एक लड़का लड़की प्रेम कर रहे हैं उसके बारे में ये प्रेम की नहीं है, ना, उस प्रकार का प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया प्रेम है ना। जब हम देखते हैं यूहन्ना में जब आते हैं या यीशु मसीह पूछते हैं, है ना, डू यू लव मी, अगप्पे, पत्रस से पूछते हैं, डू यू लव मी मोर देन दीस पीपल, है ना, क्या आप मुझसे इन सब लोगों से प्रेम करते हो। That's the agape love that God is asking us to have, and here's the same thing that Paul is telling us, है ना। पौलुस भी यही कहता है कि हमें जो है ये अगप्पे का प्रेम रहना चाहिए, है ना। I can give you much theoretical talks on this, है ना, आप लिख के ले सकते हैं, ये सब है, लेकिन मैं जब तैयार कर रहा था I was going a little more into theories and I felt that, ना, आप लोग सुने होंगे, आप देख भी सकते हैं, अगप्पे है, ईरोस है, फिलियोस है, ये सब जो है अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन I wanted to touch on, I'm like God is speaking very clearly as to what you should understand as to what love is, है ना। हमें समझना जरूरी है कि प्रेम क्या है, what is this love, right? And to understand that even more, right, we talk about love, and to understand more about love we need to go a little back, थोड़ी सी हम पीछे जाएंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पौलुस जो है गलातियों सभा में कलीसिया में लिखते समय वो क्या कहना चाहता है ना। when we read from verse 13 onwards, है ना, 13वां आयत से हम जब आगे पढ़ते हैं वहां पे एक मसीह में एक स्वतंत्रता के बारे में कहा गया। There is a talk that is talking about a freedom in Christ Jesus, and that freedom, the reason he is mentioning is because there were a set of people, of false teachers who came to the Galatian church, right, and they came and told, you know, वो एक झूठी प्रवादी लोग आके कहे कि भाई साहब तुम जो है मसीह के अंदर रहते हुए तुम कुछ ना करो करके बोला, वो गलत है ना। आप कभी मत सोचो कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहला चीज इसमें यह है कि आपको सुन्नति, हाँ, circumcision was one of the first things. They brought in the law of Moses, and that's why Paul is writing this letter very seriously. He's writing that and touching on those aspects, है ना, कि हमें जो है पुराने नियम के जो मूसा के द्वारा दिया गया वो धर्मशास्त्र हम आजाद हैं, we are free from that. That's what he's trying to say. So can you please read verse 13 and 14 for me, है ना। 13 और 14 हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार का प्रेम के बारे में ये पौलुस यहाँ पे कह रहा है। Can we read that? हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन आपको स्वतंत्रता मिला हुआ है, उस स्वतंत्रता को आप शारीरिक कामों के लिए आप इस्तेमाल मत करें, है ना। This is the biggest problem that is happening today in this world. Not just today, it's been happening, right? हम परमेश्वर में स्वतंत्र है कह के आज के जमाने में सब प्रकार के नौटंकी चल रहे हैं ना। All types of filth that is happening in the world, शरीर के कामों को पूरा करने के पूरा कोशिश चल रहा है, और कहते हैं कि हम मसीह में स्वतंत्र हैं। ये झूठ है ना, ये this is a false teaching that is happening, right? And that's something similar that took place in Galatian church, and praise God that it took place and we have it written, है ना। वहां पे ऐसा हुआ, इसके लिए लिखा हुआ है ना। तो हम शरीर के कामों को पूरा करने के लिए अपना स्वतंत्रता को इस्तेमाल ना करें। आगे बढ़े। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। Right.
परंतु वरन, है ना, इंस्टेड, है ना, आप जो है एक दूसरे के दास बनो, कहा गया है ना, you should serve one another. And in verse 14 says, for the whole law, ये सारी धर्मशास्त्र को जो है आप एक लॉ में, एक आज्ञा में रोक सकते हैं, लव योर नेबर एज योरसेल्फ, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, है ना। मैं इसमें आज छूना चाहता हूं. I want to take more time. I don't know if I'll be able to finish it, but I would want to try to finish it today itself and not carry it tomorrow, so that we will know the crux of it. और आप यहाँ से ध्यान से जरूर सुनना, है ना. यहाँ पे कहा गया है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, है ना. हम ये जो पड़ोसी की बात आती है, हमें पहली बार जानना चाहिए कि हम अपने आप से कितना प्रेम करते हैं. We need to know how much we love ourselves. First of all, we need to know that, right? Only if we know how much we love ourselves is where we will know how much we are supposed to love others. है ना. इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो बाइबल में ही है ना. हम जाएंगे लूका रचित सुसमाचार में, लूक चैप्टर 10 में हम जाएंगे, है ना. बहुत ही सुपरिचित एक वचन है ना. There is a very well known scripture passage, हमने बहुत बार सुना होगा, बहुत प्रचार चला है ना. It is one of the most misunderstood parable also, है ना. Parable of the good Samaritan, अच्छा समारिया के एक दृष्टांत को हम देखने जा रहे हैं आज, है ना. जब इस दृष्टांत में आते हैं, ये हमें बहुत जाना पहचाना एक दृष्टांत है, लेकिन कभी-कभी इसका जो है मतलब गलत तरीके से, है ना, गलत समझ आ चुका है दुनिया में, है ना. बहुत सारे लोग बहुत सारे बातों को लेके डाले हैं, जिस वजह से ना गलत तरीके के एक अंडरस्टैंडिंग भी आया है. I don't know what is going around in your mind, but I want to tell you what God wants to tell here, what Jesus ideally wanted to tell when he was saying love your neighbor as yourself. आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना, इस बात को जब यीशु मसीह कह रहे थे, उसकी उत्तर के द्वारा जो है यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं. And so I want to quickly run through that. So this story, the reason why Jesus told this story, and we read that from verse 30 onwards, यीशु मसीह ने इस कहानी को इसलिए कहा क्योंकि हम 25 में जब आते हैं, चैप्टर 10 लूका रचित सुसमाचार उसका 10 का 25 में जब आते हैं, वहां पे देख सकते हैं कि there is an expert of the religious law. मैं जब पढ़ रहा हूँ, आप कृपया करके, समय के कमी की वजह से मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, सब कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप जरूर अपने बाइबल्स को खोलें और है ना, इसको आप जरूर देखते रहिएगा, है ना. When we come to Luke chapter 10 verse 25 onwards, 25 से जब देखते हैं, वहां पे we see that one day an expert of the religious law stood to test Jesus, है ना. वहां पे देख सकते हैं कि एक जो है धर्मशास्त्र का एक व्यक्ति जो है खड़ा होता है और यीशु मसीह को परखने का कोशिश करता है ना. He is trying to test Jesus and he asks him this question, what should I do to inherit eternal life, है ना. अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं. बहुत अच्छा प्रश्न है ना. ये हमें हर दिन पूछना है. आप अपने आप से पूछें, परमेश्वर से पूछें कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए. अच्छा प्रश्न है ना. और यीशु मसीह के बारे में जब देखते हैं, आप बहुत बार सुने होंगे ना, यीशु मसीह सीधा उत्तर कभी नहीं देते. He doesn't give a straight answer anytime, right? But he asked a question, है ना. वो दोबारा एक प्रश्न पूछता है और यीशु मसीह पूछते हैं, what does the law of Moses say and how do you read it, है ना. ये धर्मशास्त्र क्या कहता है और तुम उसे कैसे पढ़ते हो, है ना. How do you read it? Many times problem comes in the form that we read, है ना. हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के तरीके से जो है हमारी समझ जो है बदलता है आजकल, है ना. लोगों का समझ बदलता है. इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद पूछा कि तुम इसको किस प्रकार से पढ़ते हो. How do you read it, right? And he starts off by saying, you know, what does he say? He says that, you know, you need to right, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength and with all your mind, है ना. पूरे मन से आप जो है परमेश्वर की आप सुधि रखो, प्रेम करो. and love your neighbor as yourself. This is the same thing that we read there. अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो. ये कौन कह रहा है? वही धर्मशास्त्र को जानने वाला व्यक्ति कह रहा है. When he says that, and Jesus says, you have answered correctly. आपने सही बताया, जाओ और ऐसा करो, है ना. और तब you see verse 29, it says that he wanted to justify himself. वो अपने आप को न्याय दिखाना चाहता था, है ना. वो किस लिए खड़ा हुआ? यीशु मसीह को
परखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, and he was not able to test. So to justify himself, he asked this question, who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? And that's where this parable starts, right? And I want to spend a little time on this parable so that we can understand what love is, right? And then as we are going on this parable, you read further down. This is a very well-known parable, and I would just want to run down in this. And in the parable, we see that Jesus saying, right? In reply, Jesus said in verse 30, we read that a man was going down from Jerusalem to Jericho. है ना? यरूशलेम से एक व्यक्ति जो है यरीको को जा रहा था. And as he was going, we see that he was attacked by bandits. है ना? चोर आके उसको अटैक किए, है ना? और वहां पे देख सकते हैं कि उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको पूरी तरह लूट लिए, है ना? He was completely stripped about and he was things of his were stolen. उसको लूट लिए और उसको अधमरा, है ना? आधा मरा, half dead, he was thrown in the roadside, है ना? रास्ते के किनारे जो है उसको अधमरा फेंक दिया गया था, है ना? और 31 में पढ़ते हैं, verse 31. From here, please be very careful, right? Listen to me very careful. Verse 31 it says, by chance a priest came along. वहां पे जो है एक याजक, है ना? एक याजक वहां पे आता है. First thing is that there's a priest who comes there, and what happens? He sees the man lying there, but crossed to the other side of the road and passed by him. वो उस तरफ से जो है दूसरी गली पकड़ के वो निकल गया. कौन आया पहले? याजक आया. What happens? Second, it says, then there is a Levite who comes. He looked over him and he looked at him lying there, but he also passed on the other side. उसने भी कुछ नहीं किया. कौन आया? पहला कौन आया? याजक आया. दूसरा लेवी आया. These are two set of people who know the scripture. परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से जानने वाले सिर्फ नहीं, प्रचार करने वाले लोग हैं. ये कौन? याजक और लेवी लोग, है ना? ये दोनों ने इसको देखा और ये दोनों क्या किए? दूसरे तरफ से निकल पड़े. कौन था ये? He was a Jew. He was going from Jerusalem. यरूशलेम से जा रहा है. एक यहूदी था जो यरूशलेम से गया. ये कहानी है ना? यरूशलेम से जा रहा एक यहूदी था जिसको मारा गया था और वो रोड के बीच में अधमरा. मतलब इनके खुद के भाई, है ना? ये जो रास्ते में पड़ा हुआ है इनके खुद का भाई है. कहीं से एक रिलेशन है इनका, है ना? It's their own brother, but they cross over and just go. वो चले जाते हैं, है ना? और उसके बाद तीसरा व्यक्ति आता है समरिया का आदमी, है ना? And we will touch a little more on the Samaritan man, है ना? What was happening with the Samaritan man? ये समरिया का आदमी क्या होता है ना? Then the Samaritan man came. ये समरिया व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह ने ये जो क्या बोलते हैं ये दृष्टांत, the reason why Jesus gave this story about the Samaritan man is because when this man stood to test Jesus, जब यीशु मसीह को परखने के लिए वो वहां खड़ा था, यीशु मसीह जान गया था कि इनके मन में क्या चल रहा है ना? The reason why, what was running in their minds, right? And Jesus knew that. And what was running in their mind? You read that in Psalm, right? When we come to Psalm 139, if somebody can read that for me. ना भजन संगीता 129, right? Psalm 139, and if you read verse 21 and 22 for me, कोई पढ़ सकता है? 129, Psalm 139 verse 21 and 22. हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं, ओके, और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ. यहाँ पे आके रुक रहा है ना? इनका सोच, ये जो याजक खड़ा है, ये बंदा जो खड़ा है, जो ये यीशु मसीह को टेस्ट कर रहा है, उसके मन के पीछे में ये चल रहा है, जरूर चल रहा है ना? हे यहोवा, तू जिससे बैर रखता है, whom you hate, don't I hate them also, है ना? मैं भी उनसे बैर रखता हूँ जो तुम्हारी बात को नहीं माने. ये समारिया लोगों के बारे में जब देखते हैं, समारिया लोगों के बारे में हम जब देखते हैं, हम थोड़ा पीछे जब जाएंगे ना, हम राजाओं में जब जाएंगे, we go to the book of First Kings and the second Kings, in fact, right? We see that the sin that the Samaritans committed, समारिया लोग अच्छे लोग थे, है ना? लेकिन उन्होंने क्या किया, मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ. उन्होंने क्या किया? They intermarried, है ना? अन्य जाति लोगों के साथ उन्होंने शादी संबंध
है ना, उन्होंने संबंध रखा, उन्होंने शादी किया, और इस वजह से इनको इजरायली गोत्र से दूर किया गया, है ना। ये सारे वो लोग हैं जो इजरायली गोत्र से दूर किया गया, और ये सारे लोग जाके ठहर रहे हैं कहां पे, समरिया में। And these people, the Israelites hated, ये उन लोगों से बैर रखते थे, सारे इजराइल और यहूदिया के लोग सब समारिया लोगों से बैर रखते थे, they used to hate them, है ना। उनको यरूशलेम में प्रवेश नहीं दिया गया है। If at all a Samaritan enters the land of Jerusalem, you know, he will be stoned to death, उसको पत्थर मार के मार दिया जाता था, है ना। you go back, है ना, वो मतलब जब मैप में अगर हम उस मैप को देखते हैं, जिस प्रकार से यरूशलेम और ये समारिया पूरा है ना, यरूशलेम से यरीको को जाने के लिए बीच में, है ना, ये रास्ते में ना बीच में समारिया आता है, पर लोग जो है ये बीच से जाएंगे तो समारिया से क्रॉस करके जाएंगे तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, they can reach soon, पर वो लोग घूम के जाएंगे। कारण किस लिए? बिकॉज दे डोंट वांट टू इवन स्टेप इनटू समारिया, है ना। ये लोगों के पास ये ना, ये लोग दे कैन नेवर कम टू द टेंपल, ये कभी भी, है ना, परमेश्वर के आलय में नहीं आ सकते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। दे डोंट हैव द प्रॉफिट्स, नथिंग दे हैव, राइट। एंड दे आर पीपल हु आर हेटेड। ये जो समरिया नाम जो है ना, समरिया जो शब्द है वो एक गाली था, है ना। इट वाज अ बैड वर्ड, है ना। यीशु मसीह को हम जब यूहन्ना उसका 8 अध्याय में जब जॉन चैप्टर 8 वर्स 48, यूहन्ना 8 के 48 में जब आते हैं ना, वहां पे यीशु मसीह को ये गाली दिया गया है ना। यीशु मसीह को बुला के बोलते हैं, है ना, क्या हम गलत बोल रहे हैं अगर हम कहेंगे कि तुम दुष्ट आत्मा से भरे हुए हो और तुम एक समरिया हो, है ना। Are we wrong if we say that you are demon possessed and you are a Samaritan? वो लोग जानते हैं यीशु कहां से आए, वो लोग जानते हैं यीशु कहां पैदा हुए हैं, सब कुछ यीशु के पास माता पिता सब कुछ वो लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने समरिया, तू समरिया है मतलब, है ना। भारत में भी एक ऐसा एक जगह है, मैं आई वांट टू लीव दैट नेम लीव दैट प्लेस अननेम्ड, है ना। ये अगर आप में से कोई है तो मतलब आप गलत ना समझे ना, भारत में भी ऐसे जगह कुछ एक जगह का नाम को लेके कहेंगे, हे तू यहाँ का व्यक्ति है, जब कहते हैं ना, ये दिस इज अ डेरोगेशन, है ना। आई डोंट नो व्हाई दे put it like that, but it is like that. The whole word Samaritan was more like a disgrace, है ना। वो एक disgrace था, है ना, वो एक अच्छी बात नहीं है, वो एक गाली था यीशु के समय में, है ना। And Jesus was also called a Samaritan, and Jesus knew this man when he's standing, he's trying to justify himself, वो अपने आप को न्याय देना चाहता था, है ना। And our topic is love, please, we don't have to miss that, right? And you look down that this very man who is not a priest, who is not a Levite, है ना, ये याजक नहीं है, ये लेवी नहीं है, इसके पास कोई धर्मशास्त्र है, 5 पुस्तक है ना, पहला 5 पुस्तक है, उसके बाद कोई प्रवादी कोई नहीं है इनके पास, है ना। But this man did what is right, है ना। When we read further on, and here is where I want you to read, right? And when we come to chapter 10, Luke chapter 10, and we are coming to verse 33, right? A Samaritan came along, a Samaria का व्यक्ति आया, कोई पढ़े हिंदी में पढ़ सकता है 133? Can you read verse 33? लूक उसका 10 का 33, हाँ। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उससे देखकर तरस खाया। ना, उससे देखकर क्या खाया? तरस खाया। हाँ। We see that it says in English, the Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him. तरस खाया। प्रेम का पहला स्टेप क्या है बताए? तरस खाना। Now the first step to even have love in our life is to have compassion. Unless and until you have compassion, you ideally cannot get to the point of loving people, है ना। हमें जो है तरस खाने की जरूरत नहीं, हमारे माता पिता के साथ प्रेम करने के लिए, अपने पत्नी को प्रेम करने के लिए, अपने बच्चों से प्रेम करने के लिए आपको तरस खाने की जरूरत नहीं है ना। पर ऐसे एक व्यक्ति जो रोड पे पड़ा हुआ है, नहीं तो आप बाहर एक व्यक्ति को देखो, है ना। इफ यू नीड टू लव दैट पर्सन, यू नो, एज योरसेल्फ, पहला चीज ये है कि आपको तरस खाना जरूरी है ना। यू नीड टू हैव कंपैशन, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, right? And that's the first step, and that's where most of us as Christians have fallen apart. And we have fallen apart to not have compassion, right? Compassion निकल गया आजकल। पेंटेकोस्ट में हम जब देखते हैं, हमारे अंदर से जो तरस खाने का जो विषय है, the compassion has long gone, ना, निकल गया हमारे अंदर से, है ना।
First thing, we need to have compassion. You might be a preacher, you might be a teacher, है ना, आप एक याजक हो सकते हैं, आप एक प्रवादी हो सकते हो, आप एक पास्टर हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। आपके अंदर अगर तरस नहीं खा सकते दूसरे लोगों के ऊपर, है ना, कुछ कहीं पे गिर रहा है ना, जरूर आपके अंदर प्रेम भी नहीं रह सकता। मेरे अंदर भी वो प्रेम नहीं रह सकता जब तक मैं तरस नहीं खाऊं, है ना। He had compassion, right? I want to go further now, right? And going on to him, the Samaritan, वो क्या करता है, वो उस व्यक्ति के ऊपर, है ना, तेल और दाखरस डाल देता, उमेड़ देता है ना। He pours in oil. It says that olive oil, है ना, एक one of the versions says it's olive oil, है ना। He pours in oil and wine and bandage him. देख रहे हो क्या करता है ना, वो उस व्यक्ति को उठाता है और उसको जो है मरहम पट्टी लगाता है, जहां जहां उसकी घाव है वहां से मरहम पट्टी लगाता है, और वो दाखरस और तेल, ओलिव का तेल जो है वो उंडेलता है। He pours it, छू के थोड़ा सा लगा नहीं रहा है ना, थोड़ा सा वो छू के नहीं लगा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उंडेल रहा है। He's pouring in. Keep that pouring in very carefully into your mind, right? वो उंडेल रहा है और क्या करता है, and he puts them, what has happened, and he put that man on his own donkey, है ना, उसके वो गधे के ऊपर उसने लगा दिया और उसको कहाँ लेके जाता है, एक सराय में। He takes him to an inn, है ना। कभी मत सोचना एक हॉलिडे इन की तरह बड़ा सा एक होटल है, कभी मत सोचना ना। Don't think that he is taking him to an holiday inn, right? It is ये रोड साइड में, उस जमाने में ये रोड साइड में छोटा सा एक घर जो है, जंगल के आसपास जो है घर जो है मिलते हैं, जहां पे वो लोग अपना घर खोल देते हैं, जहां पे तुम रह सकते हो, थोड़ा सा कुछ पैसा दे पाए, है ना। हम पैसे के एस्पेक्ट में आएंगे ना, थोड़ा सा पैसे में आप वहां पूरा रात गुजार सकते हो। Little money is enough and you can spend the whole night there. And he's taking him to that inn and he takes care of him for the whole night. पूरी रात जो है उसकी ख्याल रखता है। किसका? उस व्यक्ति का। कौन है? यहूदी व्यक्ति है। ये वो यहूदी व्यक्ति है, समारिया व्यक्ति को देख के ये यही यहूदी व्यक्ति जो है थूका होगा एक दिन। This man would have spit on this Samaritan man someday because they hate them and they both hate each other. Okay, एक दूसरे से बैर रखते हैं, वो दूसरी बात है ना। लेकिन ये व्यक्ति जो इससे बैर रखता है, उस व्यक्ति को ये उठा के जाता है, तेल और दाखरस उंडेलता है, लगाता नहीं है, उंडेलता है। He pours it, right? And then he takes care of him the whole night. पूरी रात उसको संभालता है, उसकी देखभाल करता है। कैसे पता मुझे पूरी रात? जब हम 35 पढ़ते हैं, when we read verse 35, it says that the next day, अगले दिन, मतलब पूरी रात उसने उसकी देखभाल किया, है ना। अगले दिन उसने उस सराय के मालिक को जो है 2 दिनारी दिया, है ना। There are the researchers who said this, and they said that there was a board that was found, है ना। एक बहुत बड़ा सा एक बोर्ड मिला था, एक सराय में रखा हुआ एक बोर्ड था ना, रोड साइड में, एक सराय के रोड में, है ना। रोड में जो सराय है, in this inn it was kept like this, कि आपको जो है एक दिन रहने के लिए 1 दिनारी का 32वां भाग काफी है ना। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है उस सराय के मालिक को 2 दिनारी देता है, मतलब 1 दिनारी से आप पूरा 1 महीना रह सकते हो खाना पीने के साथ ना। कहता है 132nd पार्ट, आई एम सॉरी, इट्स नॉट 30 सेकंड, इट्स 132nd, 132वां भाग काफी है, मतलब खाना पीना देखभाल के साथ जो है पूरा 1 महीने से ज्यादा जो है आप रह सकते हो एक सराय में 1 दिनारी से, है ना। इसने 2 दिनारी दिया, मतलब लगभग 2 महीने, 2 या 3 महीने रहने लायक पैसा इसने किसको दिया? वो सराय के मालिक को दिया। सोच के देखो, है ना, ये ऐसा काम आप किसके लिए कर सकते हो, है ना। मैं अपने आप में देखूंगा तो ना, ये बस मैं अपने लिए कर सकता हूँ, आप जो है ये अपने लिए कर सकते हैं, अधिक से ज्यादा आप अपने पत्नी के लिए कर सकते हो या बच्चों के लिए कर सकते हो। माता पिता तो पता नहीं, दूर की बात है, कर सकते होंगे, करना चाहिए, है ना, करना है, परमेश्वर के वचन के प्रकार हमें करना है ना। मैं जनरली बता रहा हूँ, है ना। हम अपने परिवार के लिए हम इतना कर सकते हैं। क्या कुछ हो गया है, अचानक से पानी लेके डाल दिया, है ना, या कुछ भी डाल दिया, हमने उसको मरहम पट्टी लगाया, हॉस्पिटल लेके गया, उसको पूरा पैसा खर्च कर दिया, जितना पैसा है डाल दिया, है ना। उसकी पूरी देखभाल, रात भर देखभाल करना, ये सब जो है हम अपने परिवार, अपने लिए करेंगे या अपने परिवार के जनों के लिए करेंगे, बस, है ना। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमें जानना चाहिए हम अपने आप से ऐसे प्रेम करते हैं कि हम अपने लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, है ना।
2 महीने रहने लायक पैसा इसने जो है इसको दिया. He gave this money to that inn owner, the owner of the inn, and an innkeeper, and he said कि इससे ज्यादा होगा तो मैं वापस आके आपको दूंगा. And he doesn't stop there. If there is more than this, I will come back and give. This is true love. मैं आप अपना सारा चैट बॉक्स ओपन करके रखे, मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूँ, है ना, आप इसका उत्तर दीजिएगा, है ना. यीशु मसीह यही प्रश्न पूछते हैं ना, है ना. एंड in verse 36 Jesus also asking the same question. प्रश्न ये है कि 3 लोग आए थे और इस अधमरा व्यक्ति को देखे. There were 3 people who saw this half dead man, and you know what, who was the one who showed mercy on him? किसने उसको दिखाया? पहला व्यक्ति याजक आया था, दूसरा लेवी आया था, तीसरा समारी व्यक्ति आया था. इनमें से किसने उसको दया दिखाया? क्या आप चैट में लिख सकते हैं? Can you just type it? Who was the one? I get this answer called Samaritan. Okay, सब लोग लिख सकते हैं Samaritan. Okay, right? Samaritan, right? We all know that it is the Samaritan. वो समरिया व्यक्ति था, है ना. वो समरिया व्यक्ति था जिसने उसके ऊपर दया दिखाया, है ना. And I want you to read this. Please open your Bible and read this. Right? Jesus is asking this question. Jesus asking this question in verse 36. It says that, and now which of these 3 would you say is the neighbor? कौन इसका पड़ोसी है करके पूछता है. And you know the answer. Can you read it in verse 37? Can somebody read in Hindi? है ना. उसने कहा, अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? वही जिसने उस पर दया की. यीशु ने देखो, he is not even using the term Samaritan. आप सबने समारिया वाला लिखा. Everybody wrote Samaritan, right? But this man is saying the one who showed mercy, है ना. वो अच्छे के लिए कभी भी अपने मुंह से जो है इन लोगों का, समारिया लोगों का नाम नहीं निकालेंगे, बस गाली के लिए निकालेंगे ये लोग, है ना. उतना बैर रखते हैं ये लोग, है ना. लेकिन हमारा पॉइंट क्या है? प्रेम के बारे में. You see that there was a stranger man who was actually hated. सोच के देखो, आपका कोई एक व्यक्ति, आपको जानने वाला एक व्यक्ति या ना जानने वाला व्यक्ति कोई भी हो, है ना. पाकिस्तान का एक व्यक्ति सोच लो, कभी कभी भारत जो है पाकिस्तान से, है ना, बैर रखते हैं, है ना. पाकिस्तान का एक व्यक्ति नीचे रोड में पड़ा हुआ है ना. ये समारिया वाले से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट प्रोबब्ली वी माइट हैव मर्सी ऑन देम, है ना. ऐसे एक समय पे जो आपसे बैर रखते हैं, है ना, आपका एक बैरी जो है रोड पे पड़ा हुआ है और आप अगर उसको देखो, है ना, और आप जानते हो कि ये मेरा दुश्मन है ना, क्या आप उससे प्रेम दिखा पाओगे? और किस प्रकार का प्रेम दिखाओगे आप? What kind of love? You see the kind of love that he's showing. He is ready to give everything that he has for this man. देखभाल कर रहा है, पूरी रात उसने उसकी देखभाल किया. उसके पास जितना तेल था, जितना वो जो दाखरस था, उसने उमेड़ दिया, उसके ऊपर डाल दिया. He poured in the oil and the wine and he bandaged him. All that he had for his travel, he gave it to this man. This is how we love, this is how much we love ourselves. इतना है हम अपने आप से प्रेम करते हैं. हमें जानना चाहिए कि हम अपने आप से कितना प्रेम, इतना हम प्रेम करते हैं अपने आप से, अपने परिवार से. क्या हम ऐसा प्रेम कोई अनजान व्यक्ति से हम कर पाएंगे क्या? Can we do that kind of a love? Can we show that kind of a love to an unknown person? And who is our neighbor? कौन है हमारा पड़ोसी? हर कोई व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द से जो निकल के जा रहे हैं, हम जब भी रास्ते में जा रहे हैं, जो everybody whom we see is a neighbor, one way or the other, है ना. एक तरीके या दूसरे तरीके से हम उनके, वो लोग हमारे पड़ोसी बन गए. आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति सिर्फ पड़ोसी नहीं है, आपके घर के पड़ोस में रहने वाला भी पड़ोसी है, जहां पे आप जा रहे हैं सब व्यक्ति. And this word says that love your neighbor as yourself. आप अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना चाहिए. We are called to love like that. That is the love, agape love. You know, this is the agape love. This is the love that God showed on the cross. For God so loved the world. है ना, यीशु मसीह को हमारे ऊपर दया आया, नहीं, पिता परमेश्वर को हमारे ऊपर पहली बात है कि दया आया. God had compassion. That's why he showed that love. You know, we see about this man having compassion. The first step,
God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया. क्यों प्रेम किया? उसको दया आया पहली बार. इनको दया आया कि हम जो है पाप में भरे हुए लोग हैं. We are all people who are in sin, right? And that's why God loved us, that He gave His one and only Son, so that we can have eternal life through Him. Amen. हमें वो अनंत जीवन मिल पाए उसके द्वारा. ये प्रेम है जो हमारे अंदर आना चाहिए. This is the fruit. And this is not the first fruit, but in the list this is the first fruit. All of that we need to have all the qualities. एक क्वालिटी रहने से नहीं चलेगा. लेकिन हम जब देखते हैं, अगर हमारे पास पहला ये क्वालिटी आ गया, ये सबसे ऊपर है, this quality is above all the other qualities, right? And what do we see in the scripture? This is how we love ourselves, and that's exactly what Paul was saying in Galatians. When we read from chapter 5 verse 14, he's like, use this freedom to love one another. हम स्वतंत्र हैं आज. We are free. We are not bound by any of the laws of the Old Testament. But use this freedom not to create hatred, but to create love. हमारे अंदर वो प्रेम आना चाहिए, मसीहत वाली प्रेम, that agape love. क्या हमारे अंदर है? The first time when I understood the scripture, I fell down and cried. मैं रोया, बहुत देर रोया. हे परमेश्वर, मैं कैसे कर पाऊंगा ऐसा प्रेम? कैसे दिखा पाऊंगा ऐसा प्रेम? क्या मैं दिखा पाऊंगा? And that's why it was the start. It is a difficult journey, let me tell you, brothers and sisters, to love others like ourselves. Love our neighbors as it's a difficult, but it's not impossible. परमेश्वर ये जो बताया है, ये असंभव नहीं है, ये संभव है. हम सबको अपने समान, इसलिए we have to consider everybody equal, है ना? कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है. That's where it starts through. Love, true love, genuine love is what God is looking forward to, right? When we come to what ये यीशु मसीह के शिष्य लोग ना, इनके बीच में हमेशा ये लड़ाई चलता था कि हम में कौन बड़ा है, right? हमें पता है ना, हर समय जब यीशु मसीह बोलते हैं यार मुझे अभी क्रूस पर चढ़ा दिए जाएंगे, है ना, चढ़ा देंगे, मैं मरने वाला हूँ, I'm about to die. He's giving his passion prediction, how people will beat him up and all these things. And the next part you always see is the disciples discussing who is the greatest. हम में कौन बड़ा है ना, हम में बड़ा कौन है? And Jesus, he's giving a baffling reply, है ना. हमेशा लोग जो है मसीहत को दिखाने के लिए अपने बाहरी तरीके से दिखाने की पूरा कोशिश करते हैं, है ना. बाहरी तरीके से दिखाने के लिए पूरा कोशिश करते हैं लोग. People are trying to show, है ना, अपने वेशभूषा में किस प्रकार से दिखते हैं, है ना, किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, इस प्रकार से लोग दिखाना चाहते हैं कि भाई हम मसीह लोग. बस स्टॉप में खड़े हैं, देखेंगे, हाँ बोलना चाहिए भाई साहब ये मसीह आदमी है ना. They are saying, oh, he's a Christian because I can see through his face, through the way he looks, his attire जरूरत है, लेकिन that's not what shows that we are Christians. What shows that we are Christians? क्या है वो दिखाता है जो हम मसीहत हैं? यीशु मसीह ने इसका उत्तर दिया है. क्या हम पढ़े यूहन्ना उसका 13:35? Can we read John chapter 13 verse 35? Can somebody read that? Jesus is giving an answer as to how will people know that you and I are the disciples of Jesus. Can we read that? यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो. हाँ, आपस में प्रेम रखोगे तभी इससे जानोगे कि तुम मेरे चेले हो. You should love one another. Love is the utmost. इस सब के ऊपर जो है प्रेम खड़ा है. Love is the utmost of all, right? And that is what shows that we are the disciples of Jesus. अगर हम में प्रेम नहीं है तो जो है हम मसीह नहीं कहला जा सकते. मैं नहीं कह रहा हूं, है ना, यीशु मसीह के चेले कह रहे हैं, है ना. हम पहला यूहन्ना में जब आएंगे, है ना, प्लीज ओपन योर बाइबल्स टू 1 John chapter 4 verse 7 and 8. पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 7 और 8 जब पढ़ेंगे, वहां पे जो है यूहन्ना, 1 John is actually talking so much about love. In fact, the whole gospel of John is also talking about love, है ना. प्रेम के बारे में कहा गया है ना. ये प्रेम जो है इतना श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अगर हम प्रेम नहीं करेंगे
और अगर हम कहेंगे कि हम मसीह लोग हैं, if we are saying that we are Christians and don't have love, we are actually liars. हम झूठ बोल रहे हैं, झूठे लोग हैं। प्रेम इतना श्रेष्ठ है, ये थियोरेटिकल नॉलेज में नहीं आएगा। ये हमें बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर मुझे प्रेम करना सिखाओ। मैं प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, सच्चा प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे माता पिता से प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे परिवार में प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। मैं ये प्रेम को जो है बाहर दूसरे लोगों पे दिखा नहीं पा रहा हूँ। I cannot show it. ये प्रार्थना करना है। अगर ये प्रेम हमें नहीं है, हमारे कलीसिया के भाई बहनों में अगर हमें प्रेम नहीं है, हम झूठे निकल रहे हैं। Can we read 1 John chapter 4 verse 7 and 8? Can somebody read that? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? प्रेम है, राइट? आपको अगर याद है, if you remember yesterday we discussed on this, right? परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया था। जब अपने स्वरूप में बनाया था, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का स्वरूप खूबी क्या है? प्रेम है। We also had the same love until we fell from the presence of God. हम जब तक पाप नहीं किए तब तक हमारे अंदर वही प्रेम था। God is love, and we are also people who had this love. हमारे अंदर था। आदम और हवा की बात कर रहे हैं, है ना। हमारे पूर्व पिता, मतलब आदम और हवा, इनके अंदर प्रेम था, वो मसीह वाला प्रेम, same love was there. But you know what? When we fell down from there, when sin came into existence, you know, instead of love, what came? Hatred came. बैर आया, और वहीं से आदम और हवा के पहले संतति ने अपने दूसरे को जो है मार दिया था। Cain killed Abel. Hatred. बैर आया। जब प्रेम नहीं निकला, प्रेम जब निकल गया, क्या आया? बैर आया। There was hatred that came, and there was murder that took place. First murder of the offspring of the humans in this world. There was murder that took place. Why was it? It was because there was no love. Because the Holy Spirit was gone. पवित्र आत्मा निकल गया था, है ना। जब हम मसीह, कल मैंने बताया था इसके बारे में, जब मसीह को हम स्वीकार करते हैं, है ना, शरीर प्राण और आत्मा है। आत्मा में हमारे एक लाइट जलेगा। वो अंधकार में जो आत्मा था, वहां पे एक प्रकाश आएगा। There is going to be a light that shines on this, and when the light shines, it is the Holy Spirit who wants to guide, and we are our body, हमारे शरीर पे जो है, हम जो है इस आत्मा को चलने के लिए अनुमति देना चाहिए। And the first of all is love. You know, if you have love, almost all of them will start to follow on its own, है ना। बाकी सब उसके पीछे आ जाएंगे। हमारे अंदर अगर प्रेम है, वो मसीह वाला प्रेम अगर हमारे अंदर है ना, बाकी सब खुद ब खुद आ जाएगा, है ना। Joy, peace, long suffering, we'll understand more of it in the coming days, है ना। लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम जब तक नहीं आएगा ना, बाकी सब का कोई महत्वपूर्ण नहीं है ना। ये प्रेम के बारे में मेरे पास थोड़ा सा और समय है ना। I want to touch on, है ना, प्रेम का पूरा डेफिनेशन बाइबल में लिखा गया है ना। शादियों के समय में हम ये सुनते हैं, है ना। पहला कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय में, when we come to 1 Corinthians chapter 13, right, the whole of the chapter talks about love, है ना। प्रेम के बारे में कहा गया है ना। अगर मेरे पास अन्य भाषा की वरन है, if I have all the gift of the Holy Spirit wherein I can prophesy, I can speak in tongues, but don't have love, है ना। अगर मेरे पास प्रेम नहीं है तो मैं बस एक जो है बर्तन उठा के आवाज बजा रहा हूँ, है ना। एक घंटी के समय बस आवाज कर रहा हूँ, बस मुझ में कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना। जो हमने वचन पढ़ा पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय में जो पढ़े, परमेश्वर प्रेम है। अगर हम में प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर को नहीं जानते। If we love, we know God. If we don't love, we don't know God. हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, है ना। बस हम ढोंगी रह जाएंगे। और यही पहला कोरिन्थियों उसका 13 में आता है ना। हम ज्यादा पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो कैन वी रीड फ्रॉम वर्स 4 ऑनवर्ड्स। चौथा आयत से हम पढ़ सके। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फुलता नहीं। वह अन्य रीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझुलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। Wow. Look at that.
है ना. That's the definition of love, है ना. प्रेम का एक डेफिनेशन दिया गया है, ना. लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, लव इज नॉट जेलस, है ना. इसको कोई जलन नहीं है ना. ये जो है धीर क्षमा रखती है ना. ये this is where it is. Love is patient, kind, love is not jealous, love is not boastful, love is not proud और रूड, है ना. ये कोई बैर नहीं रखता है ना. ये सारे बातों को कहता है ना. आपने कुछ गलती किया है, वो गलती का जो है सोच के नहीं रखता है वो. हाँ भाई साहब, मैं ये बंदे ने इस दिन पे इस प्रकार से इसने मेरे विरोध किया था, है ना. He doesn't keep the record of the wrongs. Who? Love doesn't do that, right? And it does not rejoice in injustice, है ना. जब गलत चीज होते हैं खुशी नहीं आता है, sadistic pleasure नहीं आएगा, है ना. कोई खुशी नहीं मिलेगा उसको. किसको? प्रेम को, है ना. लेकिन है ना, वो कब खुश होता है? जब सच्चाई जीतता है. सब चीज में खुशी नहीं होगा, लेकिन जब सच्चाई जीतता है, when truth prevails, love is happy, love rejoices. Love never gives up. वो कभी देता नहीं, हाथ नहीं छोड़ेगा. Love never loses faith. It is always hopeful, endures through the circumstances, है ना. हर परिस्थिति में जो है प्रेम खरा उतरता है ना. ये प्रेम का बात जब देखता हूं ना, मुझे एक कहानी याद आ रहा है. ये पता नहीं आपने कभी सुना होगा, व्हाट्सएप में पूरा आया था एक बार, है ना. एक जमाने में आया था, मेरे को पता नहीं है ना. it is ये कल्पना की कहानी है ना. This is talking about love, and there were 5 people on one island. 5 लोग एक जो है द्वीप में थे. वो फंस गए थे उस द्वीप में. एंड वो जब उस द्वीप पे फंस गए थे, वहां पे होता क्या है, ये 5 लोगों का नाम है. एक है प्रेम, one is love, the second is joy, third is peace, fourth is hope, and fifth is ego, है ना. 5 लोग थे. एक पहला था जो है प्रेम, खुशी, समाधान, आशा और अहंकार. ये 5 लोग जो है एक द्वीप में, they were in one island. And when they were there, they came to know that there is going to be a big flood. एक बहुत बड़ी आंधी या तूफान आने वाली है, और उसके द्वारा ये पूरा द्वीप जो है डूब जाएगा. ये वो लोग जान गए, और इस कारण से जो है ये लोग एक नाव को बनाने की कोशिश कर रहे थे. They were all making one boat. ये उन्होंने एक नाव बनाया. ये बनाते समय जो अहंकार था वो कहीं गया हुआ था. वो जब वापस आया तब तक ये जो बोट बन गया. ये this whole of this boat was ready, है ना. And then as they finished making it, and they started to see that the storm was coming. वो देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सा एक लहर आ रहा है उस समुद्र से, है ना. There was a big storm that was coming, and everybody, है ना, सब लोग प्रेम, खुशी, सब लोग जो है कूद के उस नाव में चढ़ गए, और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए they were there just to save themselves, and they just jumped into it. जब उन्होंने चढ़ा, उन्होंने देखा कि अहंकार नहीं आया. ईगो did not come, right? ईगो नहीं चढ़ा. वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है. और क्या होता है, सब लोग उतर के आते, यार क्या हो गया, तुम चढ़ो ना, क्या और क्या कर रहे हो, क्यों नहीं चढ़ रहे करके पूछे. उन्होंने बोला मैं नहीं आऊंगा. ईगो ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा. अहंकार ने कहा मैं नहीं आऊंगा, I am not coming, right? And then they were seeing that the waves are coming very close. वो जो लहर जो है उनके करीब आ रहा था, और जो है अचानक से ये लोग बहुत इनके इसको they started to plead him, tried to convince him, but he was not ready to come. He was hell bent. वो निर्णय ले ले कि वो नहीं आएगा. वो पेड़ को पकड़ के बैठ गया, है ना. और खुशी, है ना, the rest of the 3, joy, peace and hope, they went and jumped onto the boat. वो जाके बोट पे चढ़ गए, है ना. बोट पे चढ़ने के बाद वो बोलते हैं भाई आजा, प्यार, प्रेम तू भी आजा, love come along. And love is still sitting there trying to convince ego, है ना. He is trying to convince. वो अहंकार से बता रहा है भाई साहब तू आ जाए, क्यों नहीं आ पा रहा. And the ego is hell bent. मेरे बिना तुमने किस प्रकार से वो बोट बना दिया. How did you make the boat without me, है ना. और ये प्रेम पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, और लहर पास आ रहा है, and he's still trying to tell him, and the waves are coming close. वो बाढ़, है ना, वो बड़ी सी वो लहर जो है उनके पास आ रहा है, और यहाँ बोट से जो है उस बोट से जो है खुशी, है ना, समाधान और जो है आशा चीख के बुला रहे हैं, प्रेम तू उसको छोड़ दे. Love, just leave him and come. But you know what? Love could not live. Love could not live, and the wave came down, and it crushed on them, and along with ego,
love also died. अहंकार के साथ प्रेम भी मर गया. मैंने कहा पहला स्टेप, the first step to have love is to have compassion, है ना. दयालु बनना है पहला स्तर. first step is to have compassion, है ना, प्रेम लाने के लिए. लेकिन the first step to lose love is ego, है ना. हमारी अहंकार होगी पहला वो कदम जो प्रेम को हमसे दूर निकालेगा. अहंकार, ईगो. I don't know if the translation is right, if it is अहंकार, ईगो, है ना. मैं पहले रहूंगा यार, है ना, मेरे बिना क्या करेंगे, वो क्या है, ये क्या है ना. हमारी अहंकार हमेशा हर समय पे हमारे अंदर से प्रेम निकालने की पूरा कोशिश करता है ना. हमने पढ़ा, है ना, we read from 1 Corinthians chapter 13, we read that love is not boastful. वो अपने आप के बारे में बड़ा चढ़ा के नहीं बात करता है. कौन? प्रेम नहीं बताता है ना. Love is never boastful. Love is not boastful, right? But along with if we have ego within us, हमारे अंदर अगर वो ईगो है, अहंकार है, you know, पहला चीज जो मरेगा हमारे अंदर वो प्रेम है. परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम प्रेमी लोग बने. आत्मा का फल जो है, पहली बात हम देखते हैं कि प्रेम है. It is love. That's the first thing that we see there, right? And it is above all. We see in 1 Corinthians, पहला कोरिन्थियों की 13 में हम देख सकते हैं कि, है ना, there is faith, hope and love, है ना. विश्वास है, आशा है और प्रेम है. और इन तीनों के परे ऊपर कौन सा है? प्रेम है. Above all is love, right? A small test for all of you, है ना. आप जब इसको पढ़ोगे, है ना, पहला कोरिन्थी उसका 13 अध्याय उसका 4 से जब पढ़ोगे, है ना, कृपया करके आपके बाइबल को आप खोलें और उसको पढ़ें एक बार, है ना. जहां है ना, we read this that God is love. परमेश्वर क्या है? प्रेम है. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी क्या बने? प्रेम बने, है ना. परमेश्वर का सेम स्वरूप हमें आए, है ना, हम भी प्रेम बने, है ना. आप जहां पे भी यहाँ पे प्रेम करके लिखा हुआ है, जहां पे भी लव लिखा, wherever it's written love, please take that love out and put your name there, you know, put your name there, right? I just know a couple of people in here. Nisi is here and Pastor Joman, right? For an example, if I take Nisi's name, right, if I say Nisi is patient, Nisi is kind, Nisi is not jealous, Nisi is not boastful, Nisi is not proud, that's what we are all called to be. आप अपना नाम वहां पे डालें, मैं मेरा नाम वहां पे डाल रहा हूं. Tiju is patient, Tiju is kind. मैं जो हूं प्रेम रखने वाला व्यक्ति अगर मेरे में है, मैं मेरे बारे में लोग गवाही देंगे कि मैं जो हूं अहंकारी नहीं हूं, मैं दयालु हूं. मैं कौन हूं? मैं जो हूं मैं जलन नहीं रखता हूं. This is the sign of love, and this is the sign that God lives in us. This is the sign that we are Christians. Amen. ये है वो चिन्ह कि हम मसीह लोग हैं. प्रेम के बारे में और बहुत कुछ कहने के लिए है ना, लेकिन हम अपने आप में देखें बस आज के दिन. Just look into your own self. हम अपने आप में देखें, क्या हमारे अंदर ऐसा एक प्रेम है? ये प्रेम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आना चाहिए. ये आप खुद ब खुद जो है निकाल के लाने की कोशिश मत करो. ये रुक जा, चले जाएगा. आप खुद ब खुद करने की कोशिश करें, चले जाएगा. आप हर दिन प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे अंदर जो मैं कल बताया था, 2 पेड़ जो है ना, पाप का पेड़ हमारे अंदर जो है जिससे वो फल निकल रहा है, बाकी सारे फल जो हमने कहा था उसको उखाड़ फेंकना है पहला, है ना. उसको उखाड़ के फेंकना नहीं हो सकते, पर हम क्या कर सकते हैं? हमारी आत्मा की जो बीज हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा की बीज जो हमारे अंदर है, the seed of the Holy Spirit that is there within us, you need to give more water and manure to it. उसके लिए और पानी, धूप, है ना, जो खाद आप दे सकते हो आप पवित्र आत्मा को दो. और जब पवित्र आत्मा बढ़ेगा, हमें प्रार्थना करके शुरू करना है, हे पवित्र आत्मा, लॉर्ड, हे पिता परमेश्वर, मुझ में इस प्रकार का एक प्रेम दो कि मैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करता हूं. I can love my neighbor as myself. Hallelujah. यह मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है. I am very sure this is not impossible. If at all we all Christians had shown this love, you know, tears come down my eyes when I think of that statement. मैं उस खतन को जब मैं याद रखता हूँ जो गांधी जी ने कहा था,
गांधी जी ने कहा था, गांधी जी once said, I love the Jesus in the Bible, but I don't like the followers. The Jesus in the gospel is good. He's a good man. I love him. But I don't love the followers of that Jesus. क्यों कहा उसने? क्योंकि हम वे लोग बन गए हैं, हम वैसे लोग बन गए हैं जो बस सिखाने के लिए सही है. कौन था? याजक और लेवी आया था. उनमें ये दया नहीं आई, उनमें आनी चाहिए थी. उनको सब कुछ पता है. They knew, theoretical knowledge है. हमने बहुत कुछ वचन सुनतिकल. हम कर रहे हैं क्या? कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आज आपसे विनती करता हूं, आप प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से पूछें, ए प्रभु मुझे ऐसे बनना है, ऐसे एक प्रेमी बनना है, जो मैं जिस प्रकार मैं अपने आप से प्रेम करता हूं उसी प्रकार मैं सब से प्रेम कर पाऊं. अपने परिवार से पहले वहां पे शुरू करें. पहले अपने आप परिवार से शुरू करें. परिवार को, है ना, लड़ाई नहीं होगा वहां पे. How will there be a fight? How will that? Gandhi ji in fact said this. If at all the Christians lived like the way Jesus mentioned, the whole of India would have been Christian by today. He's telling that in 1944 or 1945. उस जमाने में पूरा भारत ईसाई हो जाता अगर मसीह लोग मसीहत में चलते, उस प्रेम में चलते. You and I are called to live in that, my dear brothers and sisters. हमें बुलाया गया है कि ताकि हम जो है उस मसीहत को दिखाएं. हालेलुया. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय में, परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं. सारे वो भाई बहन परमेश्वर जो यहाँ पे आए हुए हैं, all the brothers and sisters, we give it the hands and we pray. प्रभु हम में वो प्रेम, परमेश्वर वैसा प्रेम जो आपने हमें दिखाया है, जो आपने अपने शिष्यों से कहा है, you must have the love, the same love that I had. I showed you the same love. John chapter 13 verse 34 and 35. We read that, Lord, you have asked your disciples, show them, show the others, show the world that you are my disciples by your love. The same love that I showed you. परमेश्वर हम सबको वो प्रेम दे पाए परमेश्वर, ताकि हम खरे उतरे उस प्रेम में. यही प्रेम है जो हमें चला पाएगा. यही प्रेम है जो हमें परमेश्वर आपके वचन को लेकर दूर दूर तक जाने के लिए उत्साहित कराएगा परमेश्वर. Lord, this is the love that will force us to get into missions, to love those people who are downtrodden, who are in need. Help us that we will get there. Lord, I thank you that your God is enabling us, enable me, enable all of us, Lord, that we can become like that. कि आपके समान प्रेम कर पाए. धन्यवाद, धन्यवाद. यीशु के नाम पे हम मांगते हैं. आमीन, आमीन. प्रभु को आशीष करे, है ना. मैं बंद करने से पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूँ. ये मैं बीच बीच में निकालूंगा इस वचन को, है ना. Recently we had a study on James, right? I just last week I completed a study on James, and you come to James chapter 1 and verse 22, right? मैं बस क्या के छोड़ दूंगा, मैं समय अधिक लिया, माफ करना, है ना. James chapter 1 verse 22, it says that don't just be listeners of the word of God, but you must be doers. है ना. हिंदी में कोई पढ़ पाए उसको? 1:22. परंतु हाँ. वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं. हम अगर वचन को सुनने वाले सिर्फ बनेंगे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना. हम उसको करने वाले बने, है ना. ये आगे जब पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है एक आईना के बारे में कहना है. It shows about a mirror, and this mirror is something that shows us, the word of God is that mirror that shows us our face. हम कहाँ पे खड़े हैं ये आईना दिखाता है ना. इसको देख के हम पलट के जाके भूल ना जाए, वचन को ना भूल जाए. प्रभु आशीष करे इस वचन से. आपने जो समय दिया है इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ. प्रेज द लॉर्ड.